अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I audible and clear? One of you please confirm. Alhamdulillah, you are Nasri. Okay, Jazakallah khair ya Husna. We'll continue with Golden Stories of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, session number 35, page 275. Policing the marketplace. Through numerous corroborating historical accounts, we know that Umar radhiyallahu anhu was specially vigilant when it came to policing the marketplace. He radhiyallahu anhu was known to personally patrol the marketplace with a stick in his hand, using it to discipline anyone who deserved to be punished. Anas bin Malik radhiyallahu anhu related that once he saw Umar radhiyallahu anhu walking in the marketplace while wearing a lower garment that contained 14 patches. And Anas radhiyallahu anhu recounted, Umar radhiyallahu anhu was not wearing either a shirt or a robe, but he was carrying a stick in his hand. Here was the leader of a great nation, the overall ruler of a huge population, patrolling the marketplace in simple tattered clothing in order to make sure that weak and poor consumers were not taken advantage of by rich and greedy merchants. जैसे कि हमने पिछले भी चैप्टर्स में देखा, and as and when we are going forward, we are seeing how humble and what kind of ajizi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, the leader of the Muslim nation, one of the most powerful Khalifa, उनकी जो अदल और फेयरनेस और जस्टिस की जो एक तरीकाकार था, वो हमने देखा कि किस तरीके से वो ऑन ग्राउंड लेवल ऑपरेट किया करते थे. सो इवन इन मार्केट प्लेसेस ही यूज्ड टू गो डाउन एंड ही यूज्ड टू चेक कि कहीं कोई गरीब, कहीं कोई मिस्कीन, किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा, कोई ताकतवर उनके ऊपर ज्यादती तो नहीं कर रहा. तो एक बार का किस्सा है कि उमर रदियल्लाहु अन्हु मार्केट प्लेस में गुजर रहे थे और उन्होंने तकरीबन 14 पैचेस, 14 पैबंद लगा हुआ लोअर गारमेंट पहना हुआ था. एंड अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं फिर से दोबारा से काउंट कर रहा था कि कितनी जगहों पर पैचेस लगे हुए हैं. एंड उमर रदियल्लाहु अन्हु ने टॉप गारमेंट नहीं पहना हुआ था, सिर्फ लोअर गारमेंट पहना हुआ था, नो शर्ट नो रोब, और हाथ में उनके लकड़ी थी. और वो लकड़ी कैसे इस्तेमाल करते थे कि जहां कहीं भी उन्हें कोई भी कुछ गलत काम करते हुए नजर आता था तो वो उसको डिसिप्लिन किया करते थे विद दैट स्टिक. ही यूज्ड टू स्ट्राइक विद दैट स्टिक व्हिच वाज इन हिज हैंड. तो आप देखें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और किस तरीके से हम्बलनेस और ह्यूमिलिटी के साथ वो मार्केट प्लेस का जायजा ले रहे हैं, ये देखने के लिए कि कोई गरीब या कमजोर है, उन पे कोई जुल्म तो नहीं कर रहा. Al-Hafiz al-Sahabi radhiyallahu anhu related that Qatada said, while he was Khalifa, Umar radhiyallahu anhu would wear a robe made of wool and parts of it were patched with leather. Done in such an attire, he radhiyallahu anhu would patrol the marketplace, and on his shoulder he carried a stick which he used to discipline people. फिर Al-Hafiz al-Sahabi radhiyallahu anhu कहते हैं कि इसी तरीके से खलीफा उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो कभी रोब पहने हुए होते थे जो वूल का बना होता था. सो वूल का रोब वो मोस्टली विंटर के सीजन में उनका गारमेंट था, और उसके ऊपर भी लेदर के चमड़े के पैचेस या पैबंद लगे होते थे, और इस तरीके का उनका अटायर या कपड़ा होता था जो वो पहनते थे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ग्रेडेड पर्सन, द फर्स्ट टॉप नॉच, जिसे हम कहते हैं ना कि द हाईएस्ट पोजीशन इन द मुस्लिम नेशन ऑफ दैट टाइम. And he didn't pay attention to clothing. He didn't pay attention to brands. Again, how can we relate? How can we pick up lessons from this? कि humility और humbleness जो है ना, यही असल रूह है इस्लाम की, दीन इस्लाम की. हम लोग जो हैं, like for example, sometimes I experience this and I'm sure each one of us would be experiencing this. कहीं ना कहीं जाके हम लोग अगर if we are visiting somebody, हम कहीं पर किसी के घर पे विजिट करते हैं, friends, relatives, family, तो हमने अगर एक बार एक ड्रेस पहना होता है तो हम दूसरी बार उसको पहनते हुए हिचकिचाते हैं. वी बिलोंग टू द कैटेगरी जहां पर बाहरी दिखावे को इंपॉर्टेंस दिया जाता है. वी डोंट केयर कि इंसान के अंदर पाइटी या तकवा कितना है. वी डोंट केयर
कि वो पर्सन का कैरेक्टर कैसा है, वी डोंट केयर कि उसकी असल क्या है. What we look or we get impressed by is the outer garment, is the shining, is the brand, is the gold, is the jewel, is the makeup, is the status. हम लोग जो है वो बाहरी चीजों को इंपॉर्टेंस देके उससे ही इंप्रेस होते हैं, और इसीलिए हमने सेम एटीट्यूड अपने बच्चों के अंदर भी पास कर दिया है. वो भी बाहरी सतह पर रहकर बाहरी चीजों की ग्लिटर्स को देखकर इंप्रेस होते हैं, हालांकि अंदर कैसा भी खोखला इंसान हो, कितना ही इवलिश इंसान हो, बट वी गेट इम्प्रेस्ड बाय द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स ओनली. तो ये हमारे लिए एक लेसन है. नॉट दैट आई एम सेइंग कि इफ यू आर अ बिलीवर, या आप मुत्तकी हो या आप मुआहिद हो, तो आपको गंदे या अनकेप्ट रहना चाहिए. दिस इज नॉट व्हाट इट इज सेड हियर. सी, वो फटे हुए पे भी पैच लगाते थे, विच मीन्स दे यूज्ड टू बी क्लीन, ताहिर रहते थे, नीट रहते थे, मेंटेन रहते थे, मगर वो एक्स्ट्रावेगेंस में नहीं जाते थे. एंड दे यूज्ड टू बी अ स्टेप अहेड. व्हाई? बिकॉज they were trying to copy or shadow अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ही यूज्ड टू फॉलो देम वेरी क्लोजली. उस जमाने में उनकी फाइनेंशियल क्रंचेस थी, तो इस वजह से वो उनको कॉपी करने के लिए करते थे. नॉट दैट कि ही कुड नॉट afford this kind of extravagance, but unki importance was shifted to much bigger challenges. And what were the bigger challenges? The bigger challenges were to see कि उनकी अंदर जो उम्मत है वो अच्छी तरह से दीन इस्लाम को फॉलो कर रही है कि नहीं, वो किसी पे जुल्म ना करे, वो अदल करें, वो नॉलेजेबल हो, वॉर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, ये सब जो चीजें हैं जो बहुत अहम और इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर उन्होंने अपना फोकस एंड कंसंट्रेशन किया हुआ था. फॉर अस ऑफ कोर्स हमें जो है एक मॉडरेट तरीका लेकर चलना है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नो एग्जैजरेशन, and we have to see that we are maintaining our family's focus on much bigger things as in हमारी इबादत किस तरीके से चल रही, हमारे नॉलेज किस तरीके से गेन हो रहा है ऑन अ फैमिली लेवल, उसके बाद हमारे आदाब अखलाक, हमारे मामलात. We have to focus on the bigger things and keep reminding each other about आखिरा. आखिरा is something जो कि हम भूल जाते हैं जब हम ये ग्लिटर्स के पीछे भागते हैं. तो आखिरा के लिए अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा फोकस जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे मस्कारा और आईलाइनर और कॉस्मेटिक से हटकर हमारी इबादतों पे आ जाएगा. तो दिस इज व्हाट बेसिकली द लेसन इज दैट वी हैव टू लर्न. Personally patrolling the marketplace. The marketplace is a source of great benefit to every country in the world. It is where sellers come to offer their wares and where buyers come to purchase their necessities. However, the marketplace is left unsupervised can also become a place of great evil, where people cheat one another, where lewdness take place, where the rich wrongfully take advantage of the poor, etc. That being the case, Umar radiallahu anhu would personally patrol the marketplace, forcing buyers and sellers to conduct their transactions in accordance with the teachings of Islam. Since Umar radiallahu anhu could not always be present in the marketplace, he radiallahu anhu appointed As-Sa'ib bin Yazid radiallahu anhu to be in charge of the marketplace of Medina. And he also appointed Abdullah bin Utbah bin Mas'ud to perform the same job. आप अच्छी तरह से जानते हैं, like there are many hadith in regards to marketplace. Evils of marketplace rather I would say कि किस तरीके से हम लोगों के लिए एक हुक्म है कि हम जो है जब हमें जरूरत हो, वक्त जरूरत हम जाएं, अपनी चीजें लें, और सर्टन दुआज हैं मार्केट प्लेस की, वो दुआ पढ़ के अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहकर जो अपना काम है वो फटाफट निपटा कर वापस घर अपने लौटें. विंडो शॉपिंग, लॉइटरिंग, सिटिंग, लेजिंग अराउंड, ये सारे काम एक मोमिन के नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? Can we have some discussion on this? What are the evils that we experience in the marketplace? Can I hear from you guys a bit? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बोलें. एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, हम सोच के जाते हैं कि बस थोड़ा कुछ लेना है और बस हम बह जाते हैं ख्यालों में और दूसरी चीजें ले आते हैं. जरूरत की चीज हम नहीं लाते हैं, हम बस कुछ भी सामान ले आते हैं. That is the major you know. Yes, you're absolutely right. Because ये जो advertisements वगैरह हैं, ये सब हमारा it's all brain game. आप लेने कुछ जाते हो और डिस्काउंट ये वो फर्दर रिडक्शन एंड ब्लैक फ्राइडे और ना जाने क्या क्या, तो उसमें आप बहकर अननेसेसरी चीजें खरीद लाते हो. Yes, शबाना, please go ahead. What I feel is usually when we go out, what happens, we keep
wasting our time in looking at others, and we feel what they have we don't have, and lot of looking at other people and thinking about them. So it's just waste of time. So Absolutely. this is what I feel. Absolutely Jazakallah right. khairan. Absolutely right. Yes, Mehreen. Ji. One most important one is how our salah can be neglected because of that. Absolutely right. And also zikr also becomes we get Bilkul. distracted. बिल्कुल absolutely right. Yes, your salah gets neglected and then आपकी आंखें उन सारी चीजों पे पड़ रही होती हैं जो कि जिसके लिए you will be accountable, and then this will create desires, you know, unnecessary desire and irrelevant things की तरफ हमारा ध्यान जाता है. Yes, Amna. Husna, do you have anything to say? No, I'm listening. I mean, you know, you said to share, I mean, open for discussion. So it's nice. I mean, these are the points actually. But it's very rare, like, you know, we can control our desires, like you say. Absolutely. You know, we want to look around, I know, just for Yes. the sake of looking, बिल्कुल just control our temptations, you know. That is one thing. बिल्कुल सही. This is like I you mean, are personally, entering. I do that, you know, because even when I go with the kids for normal grocery shopping, so, you know, they'll tell them, Mommy, you're taking too much time, you know, here. Come on. I said, no, I'm just looking at the stuff. Yes. Rush, you know. Subhanallah. When I see they'll be in the next lane or something, the kids, you know. So बिल्कुल I said, बिल्कुल okay, fine. बिल्कुल सही. We have certain references from Quran in this regard. There is something from a very beautiful ayah from Surah Al-An'am, which is Surah 6 verse 70, and leave those who take the religion and amusement and diversion. So these are the places, marketplaces are the places of amusement and diversion. इसमें हमारा mind divert होता है. जिस तरीके से अभी हुस्ना ने कहा कि desires take place, and then Sheikh Uthaymin also says that I pray and I do all my religious duties, but in the marketplace there are unveiled women and I see them. So is there any sin on me or not? तो यानी ये सारी चीजें हैं कि हम जो चीजें नहीं देखना चाहते, जो चीजें हम नहीं करना चाहते, जो चीजें हम नहीं खरीदना चाहते, वो भी वी आर टेम्पटेड टू बाय. सो द बेस्ट थिंग इज कि हम लोग जो है दुआ पढ़ के जाएं, अपने आप को कवर करके जाएं, और जो आपको जहां से जो चीज लेनी है पॉइंट टू पॉइंट लेकर आ जाएं. विंडो शॉपिंग में आपकी नमाज और सलाह जाया हो सकती है, अननेसेसरी आप खर्चे कर सकते हो, और वो एग्जैजरेशन और उस तरीके की लॉइटरिंग के लिए एक बिलीवर के पास एक्चुअली स्पीकिंग टाइम नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा वक्त और हमारा जो एफर्ट है वो कहीं और लगना है, वो वाली चीजों में लगना है जहां पर हमें दुनिया, कब्र और आखिरा में फायदा हो. सो दीज आर इविल स्पॉट्स फॉर अस बेसिकली. तो हमें इससे थोड़ा सा बचना चाहिए. नाउ डोंट कंसीडर मी रॉन्ग कि लाइक जब हम अपनी एसेंशियल्स लेना भूल जाएं या करें, नहीं. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ मच टाइम do you put in and how much are you spending. यानी आपकी there is a difference between necessities and luxuries. So necessities के लिए आप बेशक जाइए, exaggeration कहीं मत करिए, और luxuries को जितना हो सके minimize करिए, क्योंकि ये दुनिया की जो लज्जतें हैं यही हमारा सबसे बड़ा diversion है. So this is one thing that we can say. And then again the adab would be, as I repeated, आप अपना टाइम जो है वो फिक्स करें जहां पर आपकी सलाह जाया ना हो. वो टाइम ऐसा हो कि आप नमाज अपनी अदा करके जाएं, उस वक्फे में जाकर अपनी कंप्लीट करके आ जाएं. उसके बाद कवर योरसेल्फ, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, एंड देन पॉइंट टू पॉइंट just the basic and necessities, and don't indulge yourself excessively. So that would be the best thing to do to safeguard yourself. Okay, उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो पर्सनली पेट्रोलिंग करते थे मार्केट प्लेस की, और मार्केट प्लेस जो थी वो उनके बेनिफिट पहुंचाती थी कंट्री को, बिकॉज वहां पर तिजारत होती थी, तो मनी एंड बाइंग एंड सेलिंग एंड इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स एंड सारा कुछ मुलाकातें होती है, और ऑफ कोर्स परचेजिंग ऑफ नेसेसिटीज होती थी. लेकिन अगर मार्केट प्लेस को अनसुपरवाइज छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ी खबासत और ईवल की जगह भी बन सकती है. लोग एक दूसरे को चीट कर सकते हैं, और थोड़ी सी यानी ल्यूडनेस हो सकता है. जो अमीर है वो गरीब का एडवांटेज ले सकते हैं, और इसीलिए उमर रदियल्लाहु अन्हु पर्सनली पेट्रोलिंग किया करते थे. और अगर उनके पास इफ ही इज एंगेज्ड इन समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, देन वो किसी को अपॉइंट करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने असाइब बिन यजीद रदियल्लाहु अन्हु को मार्केट प्लेस ऑफ मदीना का इंचार्ज बनाया था, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद को भी
ये मार्केट प्लेस का इंचार्ज बनाया था. Keeping a close eye on the market, Umar radiallahu anhu walked around keeping a close eye on what took place in the marketplace, and he radiallahu anhu would intervene whenever he radiallahu anhu saw an Islamic principle of buying or selling being violated, or a transaction in which someone was wronging another person. According to a narration that is related in Sahih Muslim, Umar radiallahu anhu intervened when two Muslims were conducting a transaction that involved usury. The buyer and seller had no intention of getting involved in usury, but being unaware of a specific kind of usury transaction. Nonetheless, they did get involved in it. Umar radiallahu anhu pointed out their mistake to them and ordered them to conduct the transaction in a different lawful manner. On another occasion, Umar radiallahu anhu saw a merchant surreptitiously dilute milk with water so that he could make a greater profit with the diluted mixture. Umar radiallahu anhu spilled the mixture on the ground, thus punishing the greedy merchant for his dishonest behavior. अब आप देखिए छोटे छोटे नुक्ते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, but because he is the head of the state, वो जो है खलीफा है, वो इंचार्ज हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के हवाले करके आंख बंद करके बॉस की तरह नहीं बैठते थे. यूज्ड टू गो टू द ग्राउंड, डू हिज चेक्स, सर्वे, अपनी पूरी पूरी चेकिंग, इंस्पेक्शन, टेकिंग एक्शन इमीडिएटली वाज हिज कोर्स ऑफ बिहेवियर. तो वो मार्केट प्लेस पे खुद भी क्लोज आए रखते थे. सिर्फ यही नहीं बल्कि ट्रांजैक्शंस के अंदर अगर कोई इस्लामिक वे से हटकर कोई तिजारत हो रही है तो उसके ऊपर भी नजर रखते थे. कोई किसी को चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उस पे भी इंटरवीन करते थे. जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग थे जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था मसलन कि वो रिबा यूजरी वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ला इल्मी में उन्होंने वो दोनों ने वो ट्रांजैक्शन किया. तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है उन सारे ट्रांजैक्शंस को फिर खत्म करके उसको सही तरीके से अंजाम देते थे, उनकी मिस्टेक को ठीक करते थे. उसके बाद एक जगह पर एक जो दूध बेचने वाला है जो कि अक्सर होता है अपने यहाँ पर, दूध के अंदर पानी मिलाकर वो डाइल्यूट करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाह रहा था. तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने उसका मिक्सचर जो है वो जाया कर दिया ताकि वो उसको पनिश कर सके, ग्रीडी मर्चेंट को पनिश कर सके. अभी आप लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था एंड आई वाज लाइक सो शॉक्ड बिकॉज दैट इज सो कॉमन. हम लोगों में हम औरतें अक्सर गोल्ड लेती बेचती हैं, राइट? वी कीप सेलिंग, न्यू डिजाइन आया तो वी कीप सेलिंग. आप लोग कैसे बेचती हैं और कैसे खरीदती हैं नया स्टाइल का? कोई मुझे बताएगा अपना एक्सपीरियंस, फिर मैं आपको इस पे एक गौर फिक्र करने के लिए एक नुक्ता दूंगी. फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन ओल्ड सेट ऑफ बैंगल्स, ठीक है? अभी मैंने ज्वेलरी शॉप पे मैं गई हूँ और मुझे नए स्टाइल के बैंगल्स पसंद आए हैं, तो मैं एक्चुअली क्या करूंगी टू कीप माई ट्रांजेक्शन सेफ? आंसर मी समवन. Yes, Shabana, What go you would ahead. do means like, जी yeah, क्या see. जी क्या करेंगे आप? Yeah, what I would, I mean, this is what, by the grace of Allah, this is what I do. I never decide to sell, no matter whatever broken gold piece also is there. I just keep it, never sell. This is the best way, inshallah, to, and we can just keep going to buy instead of selling. It's really lot of loss. Jazakallah khairan. Okay, वया किया शबाना. जी हुस्ना बोलिए. Same thing I was going to say, because I personally haven't sold any time. You've not sold I anything. once Okay, got- anybody who has sold gold for gold? Maybe you'll check the rate or something. I don't know what's running. Actually, इसका एक मैं सिंपल से, ये बहुत intricate matter है, and when I read about it and I came to know, then I was like really shocked because I have seen people around my family doing that, and among my friends doing that, and among my in-laws doing that. कि उनको पसंद आती है न्यू स्टाइल तो they go, they sell the gold and then they exchange and then ऊपर का amount they adjust. But that is not how you're supposed to do. What you're supposed to do is, in case, अभी ये आप लोगों ने अपना पर्सनल मुद्दा बताया ना, बट मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली जो होता है और उसमें कैसे हम ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू, यानी जिस तरीके से उन्होंने यूजरी को करेक्ट लीगल ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट किया, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि तरीकाकार किस तरीके से होना चाहिए जहां हम गलती से या लाइल्मी से बीइंग इग्नोरेंट होके कोई गलत काम ना करें. Excuse me, Nasi. जी हुस्ना. Yeah. So if you Once I was trying, Yeah. once I just want to share something. Once I Sure, was sure. trying to change something for my mother, okay. but what happens is, the quality of gold or something was not right, so I didn't go ahead with that. Or maybe I Right. did, but I don't remember. Like something
to that Say, effect. say, you're Either the absolutely gold right. quality. You're Yeah. absolutely right. I'm coming to that point only. It is not Yeah, permissible to exchange low quality gold for good gold and pay the difference. पहला नुक्ता, because gold जो है उसकी कैरेट्स होती हैं, उसकी क्वालिटी में वेरिएशंस होते हैं, so you cannot exchange low quality gold. अब हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है कि हम जान सकें, लेकिन to be on the safer side, it is not good practice to exchange gold for gold. What you can do is you can sell the gold. जो उसका करंट रेट रहेगा आज के हिसाब से, वो you can sell the gold, take the money cash in your hand, and then if you want to buy anything, buy later on. लेकिन exchange नहीं कर सकते आप, समझ आ गई? एंड उसके ऊपर जो रेफरेंस दी गई है वो वाली हदीस दी गई है जो सहीहन में है कि इट वाज अ स्टोरी ऑफ बिलाल रदियल्लाहु अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे विद सम गुड डेट्स, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा था कि वेयर डिड यू गेट दिस फ्रॉम? देन ही सेड आई हैड सम बैड डेट्स एंड आई सोल्ड 2 सा ऑफ देम फॉर 1 सा so that the prophet, peace be upon him, might eat from it. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, oh, do not do this, it is the essence of riba. देखिए आप कितनी छोटी और बारीक चीज है, the essence of riba. So Nabi sallallahu alaihi wasallam explained that adding more to things that should be regarded as equal because of the difference in quality is the essence of riba, and it is not permissible to do that. ठीक है? But he's saying he usually did that. तो मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक परमिसेबल वे बताया कि बैड डेट्स जो है उसको आप बेच दो और उस दिरहम से फिर आप अच्छे डेट्स खरीदो. सो मोर और लेस इट्स द सेम थिंग, पर थोड़ा सा इधर उधर नुकसान आपको होगा, बट दैट इज far better than getting indirectly, unintentionally involved in riba. उसी तरीके से मैं आपको ये गोल्ड का कह रही हूँ कि अगर इन केस ऐसा होता है, गुड, अल्लाह ना करे कभी हमें गोल्ड बेचने की नौबत आए, लेकिन होता है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अमंग वुमेन एंड दे डू दैट. एंड गोल्ड स्मिथ जो है वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम तिजारी, बट दे विल नॉट एक्सप्लेन यू, नोबडी केयर्स, बेसिकली नोबडी केयर्स. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की कि हम अपने कारोबार, हमारी तिजारत, हमारी लाइफ में हम हलाल को ही लेकर चलें. तो हमें ये जानना जरूरी है. इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक्सचेंज ऑफ गोल्ड नहीं करना. जो भी चीज आपको इस तरीके से करनी है गोल्ड की, तो उसको आप बेचिए, उसका कैश अपने हाथ में लीजिए और फिर उसके बाद आप कोई भी नई चीज खरीदिए. और उसका रेफरेंस मैंने आपको हदीत जो ये बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की हदीत थी वो आपको बता दी है. गोइंग फॉरवर्ड, लिमिट्स ऑफ इंटरवेंशन इन द मार्केट. Muslim bin Jundub related that on one occasion when a shipment of food arrived in Medina, the merchants of the city went out and bought the entire shipment. Umar radiallahu anhu said to them, are you conducting business in our marketplace? If so, then do one of two things. Either allow the people, common consumers, to participate with you in the buying of goods that are shipped to Medina, or go out into the lands, buy goods, return to Medina and sell whatever you have imported. मुस्लिम बिन जुंदुब रिलेट करते हैं कि एक ओकेजन पे एक फूड का शिपमेंट जो है मदीना में अराइव हुआ और वो मर्चेंट्स जो थे सिटी के वो उधर गए और पूरा का पूरा शिपमेंट उन्होंने खरीद लिया. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कहा कि क्या आप बिजनेस हमारे मार्केट प्लेस में करेंगे? और फिर कहा अगर आप करेंगे तो आपके लिए दो चीजें हैं, या तो आप कॉमन लोगों को अलाउ करो कि वो आपके साथ पार्टिसिपेट करें, ये जो खरीदना है आइटम शिपमेंट में से वो खरीदें आपके साथ, और या फिर आप लैंड्स में जाओ और दूसरे और गुड्स खरीदो, रिटर्न टू मदीना, मदीना में रिटर्न करो और फिर सेल करो जो कुछ भी आपने इंपोर्ट किया है. In each of the above mentioned instances, Umar radiallahu anhu intervened only when merchants tried to fix prices on essential goods. In another similar example, a man entered the marketplace with oil and began to sell it for a price that was higher than its market value. Umar radiallahu anhu said to him, while we will not force you to sell for a specific price, we will give you only two choices. Sell your product at market value or leave our marketplace and sell your product somewhere else. यानी आप देखेंगे कि ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. बैक होम वी हैव सीन इट मेनी टाइम्स कि किसी चीज की कमी होती है तो इमीडिएटली कोई जो ब्लैक मार्केटियर्स होते हैं वो बल्क में उठा लेते हैं और फिर अपने प्राइस फिक्स करके उसको बेचते हैं. जैसे अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि वही ग्लव्स जो हम मुश्किल से 1.25 दिनार 1.5 दिनार के लेते थे, हमने 3,750 के खरीदे क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई. ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर, ये सारे प्रोडक्ट्स की उन लोगों ने इमीडिएटली दाम जो है बढ़ा दिए. हालांकि होना कैसा चाहिए था कि और भी इसको कम कर दिया जाता, हालांकि फ्री बांट दिया जाता, क्योंकि हमें जो है मौके की नजाकत का या लोगों की कमजोरी का या मौके की हालात का फायदा नहीं उठाना है. लेकिन दिस इज व्हाट इज बीइंग डन एंड दैट इज सो रॉन्ग.
उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु नेवर अलाउड दिस ड्यूरिंग हिज खिलाफा। उन्होंने एक बार एक आदमी, एक मर्चेंट जो है वो ऑयल बेचने के लिए आया, तो और वो ऑयल का प्राइस जो है वो मार्केट प्लेस से हायर करके बेच रहा था। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उसको पकड़ा और फिर उसको कहा कि हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि कौन से प्राइस पे आप इसको बेचो, लेकिन अगर आप हमारी मार्केट प्लेस में बेचेंगे तो आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मार्केट वैल्यू पे बेचो या फिर कहीं और जाकर बेचो। यानी दिस इज वेरी स्ट्रेट, सिंपल एंड इजी कि आप कभी भी किसी का फायदा, लोगों का, बेचारे पुअर कंज्यूमर्स और पुअर पीपल का फायदा आप नहीं उठा सकते। या तो आप मार्केट वैल्यू पे खरीदो या फिर आप कहीं और जाकर अपनी दुकान लगाओ, एज सिंपल एज दैट। Umar's view on gainful employment. Umar radiallahu anhu was a strong proponent of hard work and gainful employment. He radiallahu anhu encouraged people to do whatever was necessary to earn a living as long as they did so in a lawful manner. He radiallahu anhu encouraged people to do business and would also encourage people to take up a trade. उमर रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे और हार्ड वर्क को मानने वाले थे, और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट यानी जिसमें फायदा हो, बेनिफिट हो, और वो एनकरेज करते थे लोगों को कि जो है हलाल की कमाई कमाओ, और लोगों को बिजनेस करने के लिए भी एनकरेज करते थे कि अपनी तिजारत करो। और ये बहुत जरूरी है, ये एक बेहतरीन तरीकाकार है कि आप जो है अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने आप को यूजफुल बनाएं, अपने आप को ऐसे कामों में मुब्तला करें जिससे कि आपको फायदा हो, आपकी फैमिली को फायदा हो, आपकी कम्युनिटी को फायदा हो। एंटरटेनमेंट, लेजीनेस, सिर्फ हम दुनिया में आए हैं खाने पीने और सोने के लिए, ये वाला एटीट्यूड जो है ये बहुत जहरीला एटीट्यूड है, एंड दिस इज नॉट व्हाट अ बिलीवर शुड बी फॉलोइंग इन हिज लाइफ। लेकिन सैडली, अनफॉर्चुनेटली, आज की तारीख में व्हेन यू लुक अराउंड विद इन योर फैमिली सर्कल्स, विद इन योर फ्रेंड सर्कल, आपके आसपास में, आपके बहुत ही करीब में आपको ऐसे चंद लोग नजर आएंगे जो एक लेजी और एक डाइवर्जन और एक डिल्यूटेड लाइफ में मुब्तला है। और हम जो हैं, हम दो जगह पे गलतियां करते हैं। एक तो कई बार ये कि हम जो है खुद अल्लाह ना करे नौजुबिल्ला उस वाले शेल में चले जाते हैं जहां पर हम अपनी प्रोडक्टिव या अपनी पोटेंशियल्स का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा, हम अगर हमारे साथी या हमारे पास कोई ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ योर स्पाउस, और इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ योर फादर और योर ब्रदर, जो लोग प्रोडक्टिव होते हैं और अपनी पोटेंशियल्स का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उनकी वैल्यू भी नहीं करते, कदर भी नहीं करते। वी कीप ऑन पुशिंग एंड प्रेसिंग पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग हार्ड एंड वी फेल टू पुश पीपल हु आर सिटिंग एंड लेजिंग अराउंड। यानी हम लोगों से अलग अलग जगह पर बहुत सारी गलतियां होती है। तो हमारे लिए करने वाला काम क्या है? सबसे पहला, आई कीप सेइंग दैट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज अ मस्ट, विच मीन्स पहले अपना जायजा लीजिए, क्या मैं तो लेजी अनप्रोडक्टिव नहीं हूं? Am I doing justice to my role as a wife, my role as a mother, my role as a sister, my role as a Muslim woman? क्या मैं वो सारे रोल्स अदा कर रही हूँ? मेक दुआ, अल्लाह से दुआ करें, इस्तगफार करें। दूसरा, अगर आपके स्पाउस, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके महरम्स जो हैं अराउंड यू, वो लेजी हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए? उनके लिए कीप ऑन पुशिंग देम, कीप ऑन मोटिवेटिंग देम, कीप प्रेइंग फॉर देम। ऐसा ना हो कि नागिंग करके आप उनको घर का माहौल खराब करें, लेकिन अल्लाह से दुआ करें एंड पुश करें कि वो इंडिपेंडेंट हो के अपनी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह से अंजाम दें, अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें। तीसरा ये कि क्या कोई ऑलरेडी अपना रोल अदा कर रहा है लेकिन हम फिर भी उसको पुश किए जा रहे हैं, या अनग्रेटफुल हैं? अगर हम अनग्रेटफुल हैं तो अगेन नाशुक्री चीज जो है, नाशुक्रा बंदा जो है, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बिल्कुल पसंद नहीं है, और ब्लेसिंग्स जो है वो कम या छीन ली जाती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अपने आप को और बेटर बनाना है। और इसी तरीके से एज अ मदर आई वुड से कि अपने डिपेंडेंट्स जो आपके हैं, आपके बच्चे, उनकी तरबिया भी इस तरीके से करनी है कि वो उनको बैठ के निवाले खिलाने के बजाय आप उनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। बेशक उनको बेसिक्स प्रोवाइड करें, उनको उनकी एज के मुताबिक आप उनको तरबिया दें, लेकिन उन्हें जरूर इस बात का एहसास दिलाएं कि बचपने से ही वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अदा करना सीखे, और एज बाय एज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाइए और उनको इंडिपेंडेंट बनाइए। असल प्यार इंसान को इंडिपेंडेंट करके खड़ा करने में है, ना कि उसकी स्पाइन ब्रेक करके लाड़ करने में है। तो ये चीज का फर्क भी हमें बहुत हिकमत के साथ लेकर चलना है, और ये सब चीजें हमें
ओवरनाइट समझ में नहीं आती. We have to make loads of dua, loads of astaghfar. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. हमें कंटिन्यूस दुआ करनी है अपनी फैमिली, अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपने जनरेशन के लिए, उसी तरीके से जिस तरीके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी. हमें कंटिन्यूस दुआ करनी है और फिर उस पे मेहनत भी करनी है कॉन्स्टेंटली, बिकॉज चिल्ड्रन लिसन विद देयर आईज. अपनी आंखों से सुनते हैं वो, तो जो आपको करता देखेंगे वो उसको फॉलो करेंगे. तो आपको ज्यादा वर्बल एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपके एक्शंस को वो शैडो फुटस्टेप्स पे चलेंगे. तो आपको जो है खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बन के उनके सामने खड़ा होना है. टेक देम इनटू किचन, टीच देम लाइफ स्किल्स, टेक देम अराउंड. व्हेन यू गो अराउंड, आप जमिया जाए उनको साथ में लें, उनको जिम्मेदारियां उनकी एज के मुताबिक डालें. दे लव टू डू टास्क, बी विद देम, टॉक टू देम, एंगेज देयर माइंड्स. जब आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगी तभी जाकर वो दुनियादारी सीखेंगे और इंशाल्लाह बीइज़्निल्लाह वो एक बेहतरीन मुसलमान बनेंगे. Umar radiallahu anhu wanted merchants to be fair and just in their dealings. He radiallahu anhu wanted them to earn their wealth in a lawful manner. आज हम कमाई के पीछे तो भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम इस पे गौर फिक्र करते हैं कि वो लॉफुल है कि नहीं है? Just make sure हर तरीके से, हर जगह से आप देखें कि आपकी कमाई या आपके बच्चों के पेट में जो दाना जा रहा है या आपके पेट में जो दाना जा रहा है वो हलाल है कि नहीं, which is in the end was in their best interest. However, more than anything, Umar radiallahu anhu was a strong advocate of consumer rights. While he radiallahu anhu promoted a free market, he radiallahu anhu did intervene whenever merchants acted against the interests of consumers, particularly of poor and needy consumers. Thus, he radiallahu anhu forbade merchants from forming any kind of monopoly, from hoarding goods, or from any similar strategy that was adopted in order to raise the prices of goods. उमर रदियल्लाहु अन्हु was very very particular, especially consumer rights को लेकर और खास तौर से गरीब तबके को लेकर. तो उन्होंने ये जो मर्चेंट्स हैं जो अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे, जो बल्क में प्रोडक्ट्स को उठा लें और फिर उसके बाद वो जमा करके ब्लैक में बेचें, ये सारी चीजों से जो है इसके ऊपर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु अपनी नजर रखते थे और उसको कंट्रोल करते थे. According to another narration, Umar radiallahu anhu once said, "O group of poor people, raise your heads with dignity and do business, for the way to doing business is open to you, and do not become dependent on other people." Subhanallah. No wonder दीन इस्लाम में begging नहीं थी. और एक टाइम ऐसा भी आया था उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत में ही कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं बचाता. सुभान अल्लाह. अब आप देखिए उसकी की क्या है, उसकी चाबी क्या है सक्सेस की. वो यही है कि वो लेने वाले जो लोग थे ना, उन लोगों को गाइड किया करते थे. जिस तरीके से भी आप देखेंगे इतना खूबसूरत नरेशन है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, उनसे कहा कि आप लोग अपना सर उठाइए इज्जत से, अपनी गैरत से और बिजनेस करिए कि बिजनेस आपके लिए ओपन है और किसी और लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना बने. सैडली अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक ऐसा तबका रहता है जो कि सिर्फ लोगों की ज़कात के ऊपर सरवाइव करता है, जो सिर्फ लोगों की मदद के ऊपर सरवाइव करता है. हालांकि सुभान अल्लाह उनके ऊपर कोई डिसेबिलिटी नहीं है. मैंने तो डिसेबल लोगों को भी इंडिपेंडेंट देखा है सुभान अल्लाह, कि अगर आप चाहें तो एक इज्जत की गैरत की रोटी कमा सकते हैं. अल्लाह ताला ने आपका रिस्क लिखा है और आप अगर चाहें मेहनत से और अल्लाह से दुआ करते करते अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं और अपना रिस्क कमा सकते हैं. आपको लेने वाला हाथ नहीं बनना है, आपको देने वाला हाथ बनना है. और यही दुआ आप करें हमेशा और यही मेहनत करें और इसी चीज की मेहनत और मुशक्कत करते रहें कि आप जो है आखिर तक देने वाले हाथ बन के रहें. आपके हाथ उठे तो सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के सामने. ये अगर आपके अंदर इस चीज का जज्बा पैदा हो जाए या इस तरीके से आप अपनी लाइफ को लीड करें तो इंशाअल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत है और अल्लाह की खास रहमत है. तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन पीपल. उन लोगों के पीछे, जैसे मैंने वन ऑफ माई सेशंस में आपको और भी एक्सप्लेन किया था, द पैरासाइट एंड द होस्ट रिलेशन. आप पैरासाइट मत बनिए कि आप किसी को चिपक के उसको सक करते 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 अपनी न्यूट्रिशन, आप अपने जीने के लिए आप उसके ऊपर डिपेंडेंट रहें.
फाइंड योर ओन रिस्क, आप अपना खुद रिस्क तलाश करें, अपनी फैमिली, अपने डिपेंडेंट्स को खुद बेहतरीन किस्म से हलाल की इनकम दें। और अगर इन केस ऐसा होता है कि किसी के हस्बैंड्स अगर नहीं कर पाते हैं या उनकी कमाई में कमी पेशी होती है, तो अगर आप अपने घर से बाहर जाए बगैर आप उनको घर से ही कुछ सपोर्ट कर सकती हैं तो बेशक करें। अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, सुभान अल्लाह, जहां कोरोना लोगों के लिए जहमत बन के आया है, कई लोगों के लिए रहमत बन के आया है। तो आप घर से कंडक्ट करें क्लासेस, अपनी फोटे, अपना स्किल्स देखें, अपनी स्ट्रेंथ देखें। सुभान अल्लाह, एवरी नाउ एंड देन आई कीप गेटिंग मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम सिस्टर्स जो चाहती हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, जहां तक होता है, I try to help them. I try to help them not by giving them money. I don't give them money. I don't give them support. I don't do fundraising for them. I ask them what is their strength. आपकी कुव्वत क्या है, आपका फोटे क्या है, आपका पैशन क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर खास हो, आपको उसका शौक हो, और फिर उसके बाद I guide them how to conduct home businesses and how to go ahead with it. You can fish for a person for one day and provide them the fish. But how about if you teach somebody to fish? Let them catch their own fish. This is how you develop or empower them. आपने उनकी कमर नहीं तोड़नी है, उनको लेने वाली आदत नहीं डालनी है, उनको ऐसा एम्पावर करना है कि वो खुद अपना रिस्क तलाशें. So that's the thing we have to do. Make people independent. Make them empowered rather than making them dependent on yourself. Forcing businessmen to learn the Islamic laws of buying and selling. Umar radiallahu anhu would hit with stick any person who sat down in the marketplace to sell goods without knowing the Islamic laws of buying and selling. Subhanallah. अब आप सोचें, उमर रदियल्लाहु अन्हु जो उनके हाथ में स्टिक होती थी, कोई अगर मार्केट प्लेस में कुछ बेचने और खरीदने के लिए बैठता था तो उसको मारते थे जब तक कि कंफर्म ना हो जाए कि वो इस्लामिक शरिया बाइंग एंड सेलिंग का कानून जानता है कि नहीं। यानी हर एक बंदा जो अपना ठेला लेकर उधर मार्केट प्लेस पे बैठ रहा है उसे कानून द फिक्ह ऑफ बाइंग एंड सेलिंग आता था। अगर अभी हम सोचें, हाउ मेनी ऑफ अस नो इट? वी डोंट नो, वी आर इनटू बाइंग एंड सेलिंग वी से, बट हमें कोई फिक्र नहीं आती। आपको मैं और एक चीज बताऊंगी जो 2 दिन से लाइक आई वाज कंटेम्पलेटिंग ऑन इट। सुभान अल्लाह, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम, बिकॉज मेरी क्लासेस मैच नहीं कर रही हैं, तो वो मेरी मंडे की अकीदा और फिक्ह क्लासेस जो हैं लास्ट 2 वीक से हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि माय अदर क्लासेस आर देयर जो स्प्रेड हो गई हैं, अभी उसका ड्यूरेशन भी बढ़ गया है और उसके डेज भी बढ़ गए हैं। तो आई वाज थिंकिंग लाइक हाउ टू कंडक्ट those aqida and fiqh classes. Fiqh में हम fiqh of tahara और fiqh of salah ले रहे हैं, तो I decided कि let me continue with aqida and then उसके बाद फिर मैं fiqh of tahara और fiqh of salah continue करूँगी। तो I got a message from one of the beautiful girls, वो जो हमारी student है, and she's telling me कि मैम आप अकीदा का जो है वो आप बाद में ले सकती हैं, हम रोज सलाह अदा करते हैं तो तहारा और सलाह का फिqh जानना बहुत जरूरी है। And that made me think like, subhanallah, I appreciated her a lot. And then immediately I changed it. I changed my mind कि yes, I will take fiqh of salah and fiqh of tahar का continue करूँगी and अकीदा का भी इंशाल्लाह उसके बाद करूँगी। But ये सोचने की बात थी कि कितनी जबरदस्त उसने बात कही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोगों ने ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिqh ऑफ सलाह, फिqh ऑफ तहरा किया। लेकिन इतने सालों से जो हम अपनी सलाह और हमारे वुदू हम करते आ रहे हैं, हमने कभी भी नहीं गौर फिक्र की कि इसका सही तरीका क्या है, इसके शुरूत क्या है, इसके वाजिबात क्या है, मुस्तहब क्या है, सुन्ना क्या है, वी डोंट नो। अगर गलती हो जाए तो सजदा सहू की रूलिंग्स क्या है, वी हैव नेवर डन इट, हमने कभी किया ही नहीं। हालांकि दिस इज द थिंग, हमारा पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस इज फॉर इबादा, इट इज ऑब्लिगेटरी मैटर, लेकिन हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं और ये कितना जरूरी है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी लेफ्ट, सुभान अल्लाह। एंड वो लड़की का वो मैसेज ने फिर से मुझे एक चीज को सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया। इंशाल्लाह इसको हम इंक्रीज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विल शेयर टेक्स्ट ऑन दिस फिqh ऑफ सलाह एंड फिqh ऑफ तहारा। Now coming back to the fiqh of buying and selling, हम लोग काफी बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि बेसिक बाइंग एंड सेलिंग की शरिया कानून क्या है। तो ये भी हर एक एंगल, हर एक लेवल पे हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दिस माइट बी somebody might say it's a fardal kifaya, हो सकता है, लेकिन if you are personally involved in it, then it is important for you
कि you should know the rulings. Now उमर इब्न खत्ताब ने जाकर वो घर की औरतों को नहीं बोला, जो मार्केट प्लेस में बेचने के लिए बैठे हैं उनको कहा, मीन्स दे आर इन्वॉल्वड इन इट, सो दे शुड नो इट कि बाइंग एंड सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होने चाहिए. तो कितना जरूरी है सुभान अल्लाह ये जानना और सीखना और समझना. इसीलिए दीन इस्लाम की जो नॉलेज है उसका ऑब्लिगेटरी स्टेटस है. नो अबाउट योर रब, नो अबाउट योर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नो अबाउट योर दीन, नो अबाउट योर कुरान. और हम लोग जो हैं, हमारे पास बहुत फारिग टाइम है यूट्यूब्स के लिए, गॉसिपिंग के लिए, टीवी सीरियल्स के लिए, मार्केट प्लेस के लिए. मे अल्लाह फॉरगिव अस ऑल एंड मे अल्लाह इंक्रीज आवर टाइम, और वो टाइम को हम अच्छी जगह पर यूटिलाइज करें. आमीन या रब. He Radhiyallahu anhu would say, whoever does not know usury, its definition and the various form it takes, may not sit down to sell goods in our marketplace. उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि जिसको रिबा के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसकी अलग अलग अकसाम, इसके बारे में अगर कोई नॉलेज नहीं है तो वो हमारी मार्केट प्लेस पे नहीं बैठ सकता बेचने के लिए, खरीदो फरोख्त करने के लिए. Umar Radhiyallahu anhu said this because there is more than one category of usury and each category consists of various forms of transactions. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने इसलिए इसको बयान किया डिटेल में क्योंकि रिबा की बहुत सारी अकसाम है और वो बहुत डिफरेंट शक्ल लेता है. तो इसीलिए अलग अलग ट्रांजैक्शंस में हमें जानना जरूरी है और अपने आप को बचाना जरूरी है. Therefore, if one does not have an in-depth knowledge of usury, one will likely enter into a usury transaction unknowingly. This is why Umar radhiyallahu anhu would patrol the marketplace and hit certain merchants with his stick while saying, "None may sell in our marketplace except for those who have an understanding of Islamic laws of buying and selling. Otherwise, one will end up eating the proceeds of usury, regardless of whether he does so willingly or unknowingly or unwillingly." यानी जाने अनजाने, या वो चाहता हो या ना चाहता हो, लेकिन किसी भी तरीके से रिबा के अंदर मुब्तिला ना हो. और इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है वो पेट्रोलिंग करते थे, इंस्पेक्ट करते थे और लोगों की रहनुमाई करते थे. Umar's sense of responsibility. Umar was the first person to begin caring for the safety of people at night. हमने देखा बहुत सारी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने किया था. पुलिस, द डेटाबेस, फॉर्मेशन ऑफ द मसहफ कुरान, उसके बाद यूजिंग द मिंटेड कॉइन्स इस्लामिक नेशन में, एंड नाउ सेफ्टी ऑफ पीपल एट नाइट. In Medina, whenever the people went to sleep, one person would remain awake and active. Umar would provide food to the people while ignoring his own hunger. He would abandon his own rest for the sake of the people. When the sky would fill with stars and the people were in deep sleep, Umar would take his stick and patrol the streets of Medina. If he found anyone in need, he would help him. If he found a traveler, he would give him shelter and food. If he found any criminal, he would punish him. Subhanallah. Umar radhiyallahu anhu जो है, उन्होंने, क्योंकि वो फर्स्ट थे जिन्होंने रात की जो प्रोटेक्शन है उसका सिलसिला शुरू किया था, तो फिर वो क्या करते थे, वो चेक करते थे, मदीना की स्ट्रीट्स पे घूमते थे और जो आदमी एक जो इंचार्ज था सिक्योरिटी का, उसको देखते थे अवेक एंड एक्टिव. फिर वो लोगों को जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना प्रोवाइड करते थे, हत्ता कि वो खुद कभी कभार भूखे रहते थे लेकिन औरों को खाना प्रोवाइड करते थे. अपना आराम जो है वो लोगों के लिए छोड़ देते थे. और जब आसमान पे तारे भरपूर होते थे और लोग जो है डीप स्लीप में होते थे, तो उमर रदियल्लाहु अन्हु अपनी लकड़ी उठा के मदीने की गलियों में पेट्रोलिंग करते थे. अगर किसी को जरूरत होती थी मदद की तो उसकी मदद करते थे. अगर कोई मुसाफिर मिलता था तो उसको शेल्टर और खाना देते थे. अगर कोई क्रिमिनल मिलता था तो उसको पनिश करते थे. दैट इज अवर लीडर एंड दैट शुड बी अवर रोल मॉडल. सुभानअल्लाह. क्या हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ मदर? If I may ask now, let's relate. What can we do? Open your mics, please. Tell me, what can we do as a mother? What can we do? Ya Shabana, ya Husna, ya Mehrin. Tell me, what can we do? What can we do in what sense? In the sense of providing or keeping an eye on our children. Oh, okay. हमारा There's favorite many job. things actually. Huh? Oh yeah. There's so many things we can. You know, I think we are doing most of it all the time also. we are going paranoid. Really. Okay. Really.
Yeah, what can we do? Just because We- because yeah. just last night's incident was like after my younger one, he has to study, so Ah. he has his time in play and his football or something, but the exams are coming. So Okay. I'm like, study, you have to do this, you have to do that. Then he's calling me from inside and he's saying, "Mommy, I want to ask you something, I want to tell you." I'm saying, "Kya hai, bolo." नहीं आप इधर आइए, नहीं, I said इधर आके बात करिए. He came, then he sat, "Mommy, I think you're pressurizing me." I said, "Really?" Oh my God. I said, "Oh God." I said, "How can I be doing that? I'm trying to convey some message because you're not doing it on your own. Like I'm trying to explain to him." Mm. So, there's so many things like we have to sit and, explain to them Mm. and just hope and make dua, like, they are coming on the right track. Inshallah, ya It's Rab. it's a tough job, inshallah, but Ah, it but is. may Allah make it easy for us May Allah make all. it easy, ya Rab. Ameen, ya Rab, inshallah. Yes, Nazneen, you've got something to share. Yes. What I wanted to say is, like, it's not like watching them continuously, but we should know what they are learning, what they are watching now. They are like so much close to the gadgets. True. It's very important to keep an eye on what they are watching and what True. are they learning. We True. should Yeah. design the content that they are learning. We True. should Correct. divert them to our deen. There are like so many things in the school. We cannot we cannot stop it. Mm. But at the Yeah. same time, we should maintain a regime in which they learn about our deen also. And That one is practice, absolutely one right, Nazneen. You're absolutely right. But you know what's happening? I'll tell you what I'm facing. Is there anybody else who would like to share? There's so many distractions, no, Nasreen? I mean, for Absolutely. the kids nowadays. Absolutely. Total distraction. Like for me, Alhamdulillah, sometimes they feel, and I feel also, but I can't help it. They say there is overfeeding of Islamic information. That is what they say. Mhm. My kids, they keep Yeah. telling me that we have only Islamic classes and we are only discussing Islam and we are only worried, like I'm only worried about the Quran, how much they have read and their salah and the duas and this and that. So my elder one specifically will keep asking me like, Mama, is there, the moment I see them, I'm like, ye hua, wo hua, subah ke askar hua. He's like, anything else you need to know about me? I'm like, actually, yes. तो ये एक प्रॉब्लम हमारी हो रही सैचुरेशन की. But I'm trying to keep up at par. But the problem is that whenever we say we have to balance it, but the other side is totally opposite and the other side is totally wrong. So how to balance it then? How to balance it? Like exposing them to what? When the thing that we will be exposing them is totally devastating and opposite and contradictory to our morals and values. Then how can we allow that? That is my biggest question. Yes, Nazneen and Shabana. Mehrin, please off your video, darling. Yes. Yes, personally, what I feel is before telling to my children, I see that mashallah, like I talk softly, and then when they are screaming, I tell them, just don't talk so loudly, talk softly. So before telling them to go for salah, I first do wuzu, and I tell them, see, azan ho gayi hai, ab wuzu kar liyo, namaz ko. Because few days back, like I used to tell them to do, and then it was me telling, and they will not listen. So I just changed the option, and I first started to do, and then showed them, see, I'm reading, so you also read. So this has, mashallah, made a lot of changes. So inshallah, slowly things, inshallah, will change in every one of us lives. I mean, for It's the like betterment. Nasreen से अपना ही जायजा लेना पहले, like हमेशा every चीज के लिए. Right. Barakallah feek. Absolutely. यही एक चक्कर है कि यही एक तरीका है कि उनको सिखाने के लिए पहले खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, and then they will listen with the eyes, and then slowly. इसमें दुआ का बहुत बड़ा हाथ है, तो दुआ करना ना छोड़े. अजान और इकामत के बीच में दुआ करें, सुजूद में करें, तशहुद में करें, अलग अलग जो हमारे औकात है ना, तहज्जुद में करें, उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो तब करें, आप बीमारी हालत में हो तब करें,
एंड know- फ्राइडे के असर के लास्ट पार्ट में करें, ये सारे वो औकात है जहाँ पर दुआएं कबूल होती है। तो मुसलसल इसकी दुआ करें, क्योंकि ट्रस्ट मी, जब बच्चे कुर्रतुल आयुन बनते हैं ना, यानी कूलनेस ऑफ आइज बनते हैं ना, वो बेहतरीन किस्म की ब्लेसिंग और बशारत है इस दुनिया में। सो ट्राई टू गैदर दैट, ट्राई टू गेट दैट, और इस चीज की तलब करें अल्लाह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डेफिनेटली बेस्टो दैट। और जितनी हम मेहनत करेंगे ना अपने अमाल को साले बनाने में, उतनी हमें नजर आएंगी हमारी कामयाबी इन आवर ऑफस्प्रिंग्स। तो इसको पकड़ के चले बिल्कुल, तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी ऑल ओके। और इसके बावजूद अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो सबर इन द वे राइट, जो करने वाले एक्शंस है वो करेंगे, और जो नेगेटिव है उससे हम बचेंगे, एंड विल एक्सेप्ट द कदर एज इट इज। यस, one and another thing is, like, you know, I think when we were younger, like in our younger like times, like we also have seen, you know, I mean, done some things like, you know, what the kids are doing now, and Yes. we slowly we have understood and coming to more closer to our deen. So yes, we are, like, you know, trying to get into that what you call you know, improving ourselves on that. yes, And now I think it's a little bit late, like, for us to, you know, tell the kids, like explaining to them, like, this Yes. is what you have to do and what you are doing is wrong. yes, But it'll take time for them, because we also have done something like that. So I guess, you know, we yes, just have to yes, give them yes, yes, time. I yes, think yes, absolutely. And then इसके अंदर एक और एक नुक्ता मैं can't बताना force चाहूंगी, them जो on that, I think. इसमें ना हुस्ना, लेवल ऑफ नॉलेज अगर आपकी होगी या अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन आपके अंदर होगी ना, तो बहुत हेल्प होगा। मतलब कि हमें जो है ना बहुत सख्ती या बहुत ज्यादा क्या कहते हैं स्टबन या बहुत ज्यादा वन ट्रैक माइंड नहीं रखना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एंड जहां जहां बच्चों की एज अडोलसेंट से प्रीटीन और टीन में जाते हैं ना, तभी आपको बहुत सही तरीके से और बहुत प्यार से और बहुत तहम्मुल से काम लेना है। गर्मी से जोश में आकर आप उनको बिगाड़ देंगे और दे विल हैव नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स इस्लाम, वैसा नहीं करना है। इसको बहुत समझ बूझ के चलना है हमें, और इसीलिए लाइक इसमें ना बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत है, क्योंकि जब आपके पास वो दीन की नॉलेज होती है और हिकमत अल्लाह ताला जब आपको देते हैं, तौफीक देते हैं, देन यू कैन मैनेज दिस सिचुएशंस वेरी वेल। यानी उनकी जो मर्जी है, हो सकता है हमें नहीं पता हो, लेकिन हो सकता है उनकी जो मर्जी है ना उसकी गुंजाइश इस्लाम में हो। तो हमें जानना है, ये चीज हमें जरूरी जानना है। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल बताया था, व्हाट आई फेस्ड विद माय सन इन रिगार्ड्स टू ग्रोइंग हेयर। आई वाज लाइक टोटली इनटू इट, नो नो नो, एंड देन ही प्रूव्ड टू मी दैट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड लॉन्ग हेयर, एंड ड्यूरिंग वॉर, यानी वो जंग के दौरान किस तरीके से चोटी तीन डाल के ही यूज्ड टू फाइट, एंड देयर वर अदर पीपल हैव सीन इन इर्तुगल एंड ऑल सीरियल्स आल्सो। तो यानी ये हमें नहीं पता था, बट अब उसने हमें बताया, तो ठीक है, this is all right. And then there will be many other occasions where Islam में गुंजाइश होगी, but sometimes they may be right, but we need to find out the right absolutely, absolutely. And secondly, we mistake one more thing. हम लोग एक और एक गलती करते हैं, हम बेशक अपने बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है, हम माएँ हैं, but we don't own them. We don't own them. वो हमारी प्रोडक्ट या हमारी चीज नहीं है जिसको हम किसी भी तरीके से यूज करें या अपना फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट बनाएं। We are not, alhamdulillah, we are Rabbatul Baits, but we are not Rabb. Rabb is Malik Khalik. हमको अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है और एक नेमा है। बच्चे आर द ब्लेसिंग्स, वन ऑफ द बेस्ट ब्लेसिंग्स दैट वी एज अ मदर्स कैन रिसीव। तो हमें ना उसको नर्चर करना है, उसका ख्याल रखना है, लेकिन हम उसको ओन नहीं करते। You cannot behave or badly with those with our children thinking they are our. वो हमारे नहीं है, वो रब के ही हैं, लेकिन हमें उनको गाइड करना है, मेंटरिंग करना है एज अ शेपर्ड। इसीलिए वो हदीस के अंदर शेपर्ड का वर्ड यूज हुआ है। शेपर्ड डज नॉट ओन देम, ही इज ओनली गाइडिंग देम, ग्रेजिंग देम, एंड देन उनको राह पे रख रहा है सीधा। उसी तरीके से हमें भी वही काम करना है। तो हम उनको अपनी मिल्कियत समझ के उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर सकते, ये बात जहन में रखनी है। चाहे कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो, लेकिन बच्चे उसका आउटलेट नहीं बनेंगे। एक पंचिंग बैग रखिए घर पे और जी भर के उस पे पंच करिए, लेकिन अपने बच्चों को स्पेयर करिए, बिकॉज उनका अगर बचपना
बैड मेमोरीज के साथ चला गया तो इट विल बी वेरी 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 डिवास्टेटिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग फॉर द किड, बिकॉज दोज बैड मेमोरीज विल नेवर इरेज ऑफ देयर माइंड्स, एंड उनकी जो शेप अप होनी है ना, या जो पॉजिटिविटी या जो न्यूरॉन कनेक्टिविटी अच्छी होनी है, उसमें गैप्स आ जाएंगे, और वो हमें नहीं चाहिए कि हम बाद में पछताएं, बाद में हम रिग्रेट करें। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट मोड। तो अभी से ही अपना गुस्सा, अपना फ्रस्ट्रेशन उसको पी जाइए, और अपने बच्चों के साथ एक अच्छा मामला, अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत प्यार और अफेक्शन के साथ तरबिया कीजिए। ऑन दैट नोट आई थिंक आई वुड लाइक टू एंड, बिकॉज असल का भी सलाह का टाइम हो जाएगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन रिगार्ड्स टू टुडेज सेक्शन, यू कैन आस्क। Yeah, one I remembered, Nasreen, about the Islamic laws of buying and selling Yeah. according to Sharia law. And it is like, we unknowingly we might be doing like usury or riba, we might be getting involved in that. Tell me. What is that? Where can we get those that more knowledge about that? More knowledge, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। ये गोल्ड का भी मैं सोच रही हूँ डालूं, और उसके अलावा भी जो बेसिक्स होंगे ना, जो बाइंग एंड सेलिंग के, वो इंशाल्लाह ताला मैं ग्रुप में डालती हूँ आज। Okay, yeah. ठीक है, इंशाल्लाह वो डालती हूँ ग्रुप में, ताकि हमें जो है, हमें हर सेशन में अपनी नॉलेज एनहांस करनी है। तो जज़ाकिल्लाह खैर फॉर आस्किंग, बट आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ डालती हूँ इन्फॉर्मेशन, ताकि हमारे लिए एक अच्छा रीड हो जाए। Because I just got to thinking that maybe we have been doing, we don't We know have been doing unknowingly. things, absolutely. We have been doing Unintentionally. things. Yeah, may Allah forgive us, Ya Rab. But that ignorance or that unintentional attitude is not an excuse. It will not be an excuse for us. We are supposed to know things. तो इंशाल्लाह ताला उसकी भी information डालते हैं, ताकि हम बचें। ठीक है ना? सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैरन। वय्याकुम।